Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of pre-9, that is 8th. Welcome to your biology class. Today we are going to discuss first two steps of biological method, in which the first one is the recognition of a biological problem, while the second one is observations. These topics are given on page number 21 of your chapter number 2 of textbook, that is solving a biological problem. According to the definition of biological problem, it is a question, ये एक ऐसा सवाल है that is related to living organism, जिसका ताल्लुक जानदार अज्साम यानी जानदार चीज़ों से है, जिसमें पौधे, जानवर और इंसान शामिल हैं. That is either asked by someone, जो कोई भी पूछ सकता है, जिसमें कोई भी इंसान हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो एक साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट हो. और comes in biologist mind by himself, और ख़ुद बायोलॉजिस्ट भी अपने जहन का इस्तेमाल करते हुए इस सवाल को लोगों के सामने ला सकता है, उसके जहन में ये सवाल उभर सकता है और फिर वो इसके हवाले से उस मसले के हल के लिए कोशिशें शुरू कर देता है. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. सो द नेक्स्ट स्टेप आफ्टरवर्ड्स इज ऑब्जर्वेशंस. बिफोर ऑब्जर्वेशन you must write at least one example that is related to biological problem, and here I am adding the example of malaria. Malaria is a biological problem which we are facing. And what is this biological problem about? Actually, malaria is caused by a special kind of mosquito, and the name of that mosquito is Anopheles. Anopheles, which is the female mosquito, and the bite of this mosquito actually causes special kind of germ or a special kind of parasite, and this parasite is called Plasmodium. What is the name of the parasite? Plasmodium. So actual cause, the main cause of malaria is Plasmodium, and the malaria is the common disease in humans especially. Second step of biological method is observations. Observations. Observation को उर्दू में मुशाहिदात भी कहा जाता है. मुशाहिदात यानी मुशाहिदा करना, ऑब्ज़र्व करना, या किसी चीज़ को देख कर बताना कि वो किस तरह की है, क्या नेचर रखती है. तो ये तमाम इंफॉर्मेशन जो आपके इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, उनको ऑब्ज़र्व करना, ना सिर्फ ये कि सेंस ऑर्गन्स की मदद से, बल्कि साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के जो साइंसी आलात होते हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनकी मदद से भी ऑब्ज़र्व करना या देखना, ये सब observations में शामिल होता है. So as the first step in solving a biological problem, biologist recalls his or her previous observations or makes new ones. So finally we can say what is the important thing about it, that you have to define the observation first. Definition first. Observations are, or observation is, or it is very first step. So it is the first step. Why I am calling it the first step? As I already told you about recognition of biological problem as the first step, because there are four main steps in the biological method. You have to memorize in this way. First one is observation, then hypothesis, deduction, and the last one experimentation. So four main steps are these. So in those four main steps, the first step is called observation. Is this thing clear? So it is the first step in the biological method, or it is in solving a biological problem. So we can recall the previous and the new observations depending upon our biological problem. So it is the first step, which are informations or
data about your biological problem, data that is related to your biological problem made with 5 or sense organ, you can also write with 5 sense organs, and these 5 sense organs including you can write including starting from vision, sight, that is also called sense of sight, hearing, सुनने की हिस जिसे कहते हैं, स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की हिस, सेंस ऑफ टेस्ट, चखने की हिस, चखना, एंड द लास्ट वन सेंस ऑफ टच, छूने की हिस, छू कर बताना कि किसी भी चीज़ की कैफियत या क्वालिटी कैसी है. सो नॉट यूजिंग these senses, these 5 senses, but also you can use some scientific instruments to make your data or informations, and these data and informations are collectively called observation. So this is the definition of observation. Now, not necessary that we will only depend on this definition, because there are different types of data or different types of observations, different types of information which are collected through scientific instruments as well. And we have different types of quantities and the qualities which are present around us. For example, if I'll give you the example of observation, you can understand it with the help of this example clearly. For example, if you are observing the leaves of any plant, for example, I'm making here 1, 2, 3, 4 and 5 leaves suppose. So ये 5 leaves मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दी, ठीक है. अब 5 leaves ड्रॉ करने का मकसद ये है कि आपने मुझे बस ये बताना है कि आपने इन लीव्स को देखकर, यानी आपने इनका मुशाहिदा करना है, और मुशाहिदा का मतलब ये कि आपने उनको देखना है. देखने के बाद मुझे कुछ ऑब्जर्वेशंस बतानी है अपनी. मिसाल के तौर पे अगर मैं एक एक करके स्टूडेंट से इन लीव्स के बारे में पूछूं तो मुझे क्या क्या ऑब्जर्वेशंस वो बताएंगे. नंबर 1, पहले तो वो मुझे बताएंगे कि नंबर ऑफ़ लीव्स कितने, यानी लीव्स की तादाद बताएंगे. हाउ मैनी लीव्स आर देयर, तो आंसर होगा हमारा 5 लीव्स. फिर उसके बाद मैं डॉट्स की शक्ल में कर देती हूँ ताकि हम अपनी जितना भी डेटा है वो इकट्ठा कर लें. फिर उसके बाद आप देखते हैं इनका कलर बताएंगे. अब कलर मेरे पास चूँकि ग्रीन में नहीं है तो मैं इससे हेल्प ले लेती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल इनका कलर क्या है. तो कलर इनका क्या है, तो हमने कलर इनका ड्रॉ कर दिया आपके सामने. सपोज़ कि ये ग्रीन कलर के लीव्स हैं और डिफरेंट और कलर्स में भी लीव अवेलेबल होते हैं. सो कलर ऑफ लीव, तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि कोई और ऑब्जर्वेशन जो आपने नोट की, तो आपने फ़ौरन मुझे बता दिया कि कलर ऑफ लीव जो है वो ग्रीन है. आपका नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो आ गई. कोई और डिटेल जो आप देखते ही पहचान जाएं, आप कोशिश करेंगे कि कुछ आप में से स्टूडेंट जो बहुत ही ब्रिलियंट हैं, माशाल्लाह सभी ब्रिलियंट हैं, लेकिन कुछ ये भी कोशिश करेंगे कि लीव को टच करके देखें. ठीक है, लीव्स आपके सामने मौजूद है और आप टच कर रहे हैं, तो टच करने पे आपने फील किया कि लीव्स तो बहुत सॉफ्ट हैं. तो ये सॉफ्ट नेचर जो है वो आपकी लीव की आपको कैसे पता चली, बाय सेंस ऑफ टच. तो आपने अपने सेंस ऑफ टच का इस्तेमाल किया तो आपको पता चल गया कि कोई चीज़ सॉफ्ट है या कोई चीज़ हार्ड है. फिर आपने ज़्यादातर लीव्स को आपने चखना नहीं है तो हम फ़िलहाल टेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे. हाँ, लीव्स का स्मेल आप कर सकते हैं, तो स्मेल के लिए आप सूंघ के बता रहे हैं कि भाई इनकी तो बहुत ही प्लेजेंट स्मेल है, बहुत अच्छी खुशगवार सी बू है. फिर आपका यहाँ पर हेयरिंग का कोई काम नहीं कि आप इसको सुन के बता रहे हैं कि लीव्स कैसे हैं. फिर विजन बहुत यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो है आपके लिए होगा कि आपका सेंस ऑफ साइट आपने इस्तेमाल करना है. आइज़ का इस्तेमाल करके आपने ये बताना है कि नंबर ऑफ़ लीव्स कितने हैं और इनका कलर क्या है. तो नंबर ऑफ़ लीव्स आपने आँखों की मदद से बाकायदा बताया, काउंट किया, इनकी काउंटिंग की, और काउंटिंग से आपको पता चल गया कि ये 5 लीव्स हैं और इनका कलर कैसा है. ये भी आपने सेंस ऑफ साइट के इस्तेमाल से बता दिया कि ये ग्रीन कलर के हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने
इन कुछ ऑब्जर्वेशंस को अपने पास जमा कर लिया कि ये ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। इनमें से कुछ ऑब्जर्वेशन जो हैं वो क्वांटिटी को इंडिकेट कर रही हैं, क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी का मतलब ये बता रही है कि तादाद किसी भी चीज़ की कितनी है, तादाद को बता रही है। अब ये ज़रूरी नहीं कि तादाद ही बताएं, हो सकता है कि कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन भी आपके सामने आ जाए जिसमें आपको कहा जाए कि भाई एक लीफ का जो है वो उसकी लेंथ मालूम करें। तो भाई लेंथ अगर आप मालूम करना चाहें तो ये भी तो आपकी एक क्वांटिटी में आता है। तो आपने इसके लिए क्या करना है, आपने इसके लिए किसी रूलर का इस्तेमाल कर लेना है। रूलर मीन स्केल लेकर आपने लीफ को, जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर ही हम सपोज करते हैं कि ये रूलर है, तो आपने क्या किया कि बाकायदा तौर पे इसको ज़ीरो से इस तरह से रख के यहाँ तक आपने इसको नाप लिया कि भाई ये लीफ जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये लीफ जो है वो 10 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर का। तो आपने लिख लिया कि भाई लीफ की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, सपोज ये हम फ़र्ज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्वांटिटी क्या आ गई, क्वांटिटी नॉट ओनली द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म हमारे पास लीव है क्योंकि प्लांट्स हैं, प्लांट्स हम आम कोई चीज़ नहीं ले रहे, हम ये नहीं ले रहे कि पेंसिल बना रहे हैं और उसको ड्रॉ कर रहे हैं कि इसकी तादाद नोट करें। पेंसिल इज़ नॉन लिविंग, वी आर टॉकिंग अबाउट हियर द लिविंग थिंग एंड द प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। क्लियर। तो अब हमने नंबर्स के अलावा और क्या चीज़ देख ली, हमने इसकी लेंथ देख ली, हम इसकी विड्थ चेक कर सकते हैं, इसकी चौड़ाई, लंबाई, ये सारी चीज़ें जब हम नोट डाउन कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ में आती हैं, ये आपकी क्वांटिटी में आती हैं। सो हियर वी कैन कंक्लूड दैट one of the type of observation is the quantitative observation, and on the other side we have another type of observation, and this type of observation is called quality, depending upon the quality of the living organism. अब क्वालिटी में हमने क्या क्या चीज़ें देखी, क्वालिटी में हमारे पास आ गया कलर, यानी क्वालिटी में हम क्या देख रहे हैं, हम उसकी कैफियत देख रहे हैं कि वो चीज़ कैसी है, कैफियत। तो क्वालिटी हमें इंडिकेट कर रही है, जबकि क्वांटिटी हमारी बता रही है, इसकी मेजरमेंट बता रही है, हमने इसको नाप के बता दिया कि वो लंबाई में इतना है, इसकी तादाद कितनी है। लेकिन अगर हम क्वालिटी की हैसियत से बात करें कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, तो क्वालिटेटिव में हमने देखा कि हमने सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल किया, जिसमें हमारे पास कलर का भी पता चल गया कि ये लीफ ग्रीन कलर के हैं, और हमने छू के बाकायदा बताया, अपने हाथों का इस्तेमाल, फिंगर्स का इस्तेमाल किया, और सेंस ऑफ टच की मदद से बताया कि लीव्स का जो टेक्सचर है वो सॉफ्ट नेचर रखता है। सो दीज टू ऑब्जर्वेशंस आर रिलेटेड टू द क्वालिटी, एंड दीज फर्स्ट टू ऑब्जर्वेशंस और इंफॉर्मेशन आर रिलेटेड टू द क्वांटिटी। सो वी कैन conclude this example in this sentence that observations are of two types. One is called the quantitative observation, another one is called the qualitative observations. Under the main heading of observation, the subheading is types of observation, यानी observation की types यानी अक़साम. So there are two types of observation. The first type is called quantitative observation. Quantitative observation, while the second type is called qualitative observation. So first we are going to define, and some of the important point I am going to write. Quantitative observations are invariable. Invariable. What's the meaning of invariable? That invariable mean which do not change. Do not change. Variable mean change, and invariable mean which do not change. They can be measured. इनको नापा जा सकता है, यानी किसी भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के इस्तेमाल से इनको नापा जा सकता है। जैसे अभी मैंने आपको लीफ का बताया कि लीफ को आपने, या कोई भी ट्री ले लें, उसके साइज़ को या उसकी लेंथ को नापने के लिए बाकायदा आप रूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ लीफ कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग रूलर. इट कैन बी रिकॉर्डेड in terms of number.
और इसके साथ साथ आप ऑब्जर्वेशंस को इस तरह के ऑब्जर्वेशन यानी क्वांटिटेटिव को नंबर्स की सूरत में इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बाकायदा रिकॉर्ड यानी इसको लिख भी सकते हैं, नंबर्स की शक्ल में लिखा भी जा सकता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप रूलर का इस्तेमाल करें और इस लीफ की लेंथ मुझे बताएं, तो लेंथ आप कैसे बताएंगे? बाय यूजिंग रूलर, बाय यूजिंग स्केल। कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि इस लीफ की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है आपने नापा, मेजर किया इसको, और मेजर करने के बाद इसकी लेंथ कितनी आई? 5 सेंटीमीटर। तो 5 क्या है इन टर्म्स ऑफ नंबर? आपने एक नंबर की शक्ल में इसको बता दिया कि ये एक क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में आ गया। एंड नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो इन वेरिएबल। अब ये जो लेंथ है ये तो नहीं हो सकता कि लीफ जो है वो हमने जहाँ से इसको प्लक ऑफ किया है, तोड़ा है, तो ये बढ़ जाएगा या इसकी ग्रोथ में इजाफा हो जाएगा। इट विल रिमेन 5 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ में अब कोई इजाफा नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने कह दिया कि ये ऐसी क्वांटिटी है जो कि चेंज नहीं होती, इसे नापा जा सकता है और साथ साथ इसको किसी भी नंबर्स की शक्ल में भी लिखा जा सकता है। वाइल ऑन द अदर हैंड यू विल write the opposite words of all these 3 points. Qualitative observations are variable, यानी ये चेंज होती हैं। Variable mean change. Number 2, cannot be measured. ये नापी नहीं जा सकती, इनको नाप नहीं सकते, कोई भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन क्वांटिटेटिव के लिए आप साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर डन बाय यूजिंग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे वो आप कोई भी यूज़ करें, थर्मामीटर यूज़ करें, आप रूलर्स का इस्तेमाल करें, आप वेइंग स्केल यूज़ करें, एनी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कैन बी अप्लाइड to find out the quantitative observation, to observe these type of observations or information. But the qualitative जो भी observations होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चेंज हो जाती हैं, इन्हें नापा नहीं जा सकता, कोई भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ पर अप्लाई नहीं करते, एंड दे ऑल्सो कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर। हमने यहाँ पर कैन लिखा है और यहाँ कैन नॉट बी, ये जहन में रखिएगा। cannot be recorded in terms of number। और यहाँ पर मैंने आपको फिर लीफ ही की मैं एग्जांपल दूंगी कि जैसे यही लीफ अगर आप इसको क्वालिटेटिव एतबार से अगर आप इसको ऑब्ज़र्व करें, तो इसी लीफ को अगर हमने इसकी क्वालिटी को चेक करना है, तो क्वालिटी हम कैसे चेक करेंगे? क्वालिटी में हम ये चेक करेंगे कि इस लीफ का कलर क्या है। तो हमने कलर इसका बता दिया कि कलर ऑफ द लीफ इज़ ग्रीन, तो ये इसकी एक क्वालिटी हो गई। सेकेंड थिंग दैट अब यहाँ पर वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल का मतलब कि डिफरेंट कलर्स में हम लीफ ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ग्रीन हो। क्लियर? एंड कैन नॉट बी मेजर्ड, इसको नापना नहीं है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हमने ये नहीं देखना कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो हमने इसको बिल्कुल मेजर्ड नहीं करना है। कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो ज़ाहिर बात है जब हम उसको मेजर ही नहीं कर रहे तो हम उसको नंबर्स की शक्ल में कैसे लिख सकते हैं या कैसे इसको लिखा जा सकता है। लेकिन आप इसकी नेचर बता सकते हैं, आप छू कर बता सकते हैं कि ये लीफ कैसा है। तो आपने बताया कि ये लीफ जो है वो सॉफ्ट है, क्या ये थोड़ा सा हार्ड नेचर रखता है, इस तरीके से आपने इसकी नेचर बता देनी है। तो अब आपने यहाँ पर किस चीज़ का इस्तेमाल किया? आपने अब क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को ज़ाहिर करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए अपने सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल किया। लिहाजा जब भी आप किसी भी ऑब्जर्वेशंस को डिफ़ाइन करेंगे, किसी भी टाइप को, तो वो आप कलेक्टिवली डिफ़ाइन करेंगे। एंड व्हाट आर ऑब्जर्वेशंस? ऑब्जर्वेशंस आर दोज informations which are collected with or made with not only the 5 senses of vision, sight and so many other, but also by using scientific instruments, because the quantitative observations are dependent on the scientific instruments while the qualitative one are dependent on the sense organs. Along with it you have to remember one more thing, that अगर हम थोड़ा सा इन दोनों ऑब्जर्वेशंस का थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ आपके सामने। अगर दोनों ऑब्जर्वेशंस को आप
कंपेयर करें, एक दूसरे के साथ इनका मुकाबला करवाएं, तो कौन सी ऑब्जर्वेशन आपको ज़्यादा बेहतर लग रही हैं, विच वन इज़ बेटर दैन अदर. सो द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट दैन द क्वालिटेटिव वन. यानी इन दोनों में से जो ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट दे रही हैं वो क्वांटिटेटिव होंगी. इनको बेहतर समझा जा सकता है एज़ कम्पेयर टू द क्वालिटेटिव वन. सो you have to write down the differences between the quantitative and qualitative. At least minimum 3 and the 4 maximum differences are required in this case. Now both type of observations can be best understood with the help of some examples. For this purpose you need to differentiate first between the quantitative and qualitative observation, and very first point will be their definition. Quantitative observations are those which are invariable, can be measured and recorded in terms of number, while qualitative observations are those which are variable, cannot be measured and cannot be recorded in terms of number. Quantitative observations are considered more accurate than qualitative observations, while qualitative observations are not considered accurate as compared to the quantitative one. Now second, after writing these 2 points, the third point will be examples, and for this purpose even you can mention the third point related to the sense organs and the scientific instruments. Like quantitative observations can be made with the help of scientific instruments, and the qualitative observations are done or made with using 5 sense organs, and mention the name of those sense organs. Now the fourth point will become example. Your fourth point or 4 difference will be related to the examples. For this purpose you have to write down at least 2 examples for each. Quantitative observation first. The first example is the freezing point of water. Freezing point means freezing temperature. So freezing point of water is 0 degrees Celsius, and boiling point of water, and its boiling point of water is 100 degrees Celsius. While on the other side, on the other hand, qualitative observations, you have to write down the example by relating this with this example. So the freezing point, this time I am not writing the numbers. So freezing point of water is colder than the boiling point. So in this example you can observe some numbers in case of the quantitative observation. So this thing is cleared from the example that quantitative observations are invariable, that the freezing point of water and the boiling point both will remain same. They will not change ever. वो कभी भी change नहीं होंगे. दुनिया के किसी भी हिस्से में आप चले जाएं तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 ही रहेगा और बॉइलिंग पॉइंट 100 ही रहेगा. ये कभी भी तब्दील नहीं हो सकते. कोई भी इनको चेंज नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह ऑलमाइटी के. अल्लाह ताला के अलावा और कोई ऐसी ज़ात दुनिया में नहीं है जो इनको चेंज कर सके. सो दे आर इनवेरिएबल एंड दे कैन बी मेजर्ड. इनको नापा जा सकता है. किस तरह से नापा जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर. तो इन्हें कैन बी मेजर्ड का वर्ड आपको समझ में आ गया होगा. एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर. और इनको लिखा जा सकता है नंबर की शक्ल में. तो 0 और 100 हमने इनको नंबर की शक्ल में लिख लिया. ऑन द अदर हैंड यू कैन ऑब्जर्व क्वालिटी ऑफ वाटर. अब क्वालिटी आप कैसे चेक कर रहे हैं? आपके सामने फॉर एग्ज़ाम्पल 2 तरह से मैंने यानी पानी रख दिया. एक पानी जो है वो आपके बिल्कुल ऐसा पानी है जो बिल्कुल आपने फ्रीज़र से निकाला हुआ है, बहुत ही ठंडा फ्रीजिंग पॉइंट वाला आपके पास पानी, जिसमें आप आइस क्यूब्स भी ले सकते हैं. आइस क्यूब से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपने
बर्फ़ जो है वो ली हुई है, और बर्फ़ जो है वो पानी की सॉलिड स्टेट होती है जो कि फ्रीजिंग उसके पॉइंट को इंडिकेट कर रही है। अब इस पर आपने ये नहीं बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस, आप इसमें क्या कह रहे हैं, ये कोल्डर है। कोल्डर किसके मुकाबले में कोल्डर है? दूसरी तरफ आप एक और बीकर ले लें, उसमें आपने उबला हुआ पानी लेना है, यानी इसमें से बाकायदा स्टीम आपको निकलती हुई महसूस हो रही है कि उबला हुआ पानी, और उबले हुए पानी का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन हमने यहाँ ये नहीं बताना कि ये 100 डिग्री सेल्सियस वाला पानी, हमने कहा ये ऐसा पानी है जो बॉयल्ड है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो वाटर का कोल्डर है और ये हॉटर है, जो भी आप कह रहे हैं, तो ये कोल्ड और हॉट वाली जो कंडीशंस हैं ये क्वालिटी को इंडिकेट कर रही हैं। ये बता रही है कि पानी की कैफियत क्या है, पानी की क्वालिटी क्या है। एक पानी जो है वो दूसरे पानी के मुकाबले में ठंडा है, तो ठंडा, गर्म, ये नरम, सख्त, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये क्वालिटी को इंडिकेट कर रही हैं। और क्वालिटी को इंडिकेट करने के लिए आपको कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चला कि कोल्डर और हॉटर है? क्योंकि आपने अपने सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करना है, सेंस ऑर्गन्स का, जबकि यहाँ पर आपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना है। इंस्ट्रूमेंट्स में आपके पास यहाँ पर बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट को चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा वो है आपका थर्मोमीटर आप यूज़ करेंगे इसके लिए। तो मैं छोटा सा सिंपल सा बना लेती हूँ ताकि, क्योंकि टाइम इतना मैं कंज्यूम नहीं करना चाह रही। तो ये एक सिंपल सा थर्मोमीटर है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेबॉर्ट्री थर्मामीटर भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये आपने इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया, तब आपको पता चला कि इनका फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है। यहाँ पर आपने सेंस ऑर्गन्स का कैसे इस्तेमाल किया, सेंस ऑर्गन्स में आपने देख कर बता दिया सेंस ऑफ साइट की मदद से कि देखने में ये चीज़ ठंडी लग रही है और ये चीज़ गर्म है, क्योंकि इसमें से जो है वो धुआं सा निकलता हुआ महसूस होगा, स्टीम निकल रही होगी। या आपने अपने हाथ से टच किया बीकर को, तो देखा आपने कि ये ठंडा है, हाथ यानी सेंस ऑफ टच ने बता दिया कि आपका ये बीकर ठंडा और ये बीकर गर्म है। तो ये आपने सेंस ऑर्गन के इस्तेमाल से क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस अपनी जो है वो बनाई, और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के इस्तेमाल से आपने अपनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को तैयार किया। सो दिस इज़ द फर्स्ट एग्जांपल। Second example is related to a liter of water. Liter of water weighs, 1 लीटर पानी का आपने वज़न किया है और उसका वज़न जो है वो कितना आ गया है, 1000 grams. While the liter of, एक और आपने लिक्विड लिया है, a liter of alcohol. लीटर ऑफ अल्कोहल, अब आप कंपेयर कर रहे हैं इसको, लीटर ऑफ वाटर को लीटर ऑफ अल्कोहल से, और उसका जब आपने वज़न किया है तो वो कितना आया है, वेज अबाउट 789 ग्राम्स। अब दोबारा आप क्या देख रहे हैं इसमें, अगेन नंबर आ गया आपके पास, ठीक है, एक रिकॉर्डिंग आपकी नंबर्स की शक्ल में आ गई है। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, अब इसी एग्जाम्पल को आपने कैसे क्वालिटेटिव बनाना है। सो अ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन अ लीटर ऑफ इथेनॉल। क्लियर? अब आपको कैसे पता चला कि इनका वेट कितना है और कितना आया, 1000 और 789 कैसे आया? आपने क्या दोनों को पिक करके देखा, आपने छू कर देखा? नहीं, बल्कि आपने इसके लिए बाकायदा वेइंग स्केल या जो आपके पास अवेलेबल होते हैं, जो जिन्हें आप बैलेंस कहते हैं, बैलेंस वज़न नापने के लिए जो मशीनें होती हैं, आप ये भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक ऐसा बैलेंस सामने आपके ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर बाकायदा ये डिजिटल बैलेंस होता है, जिसपे अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लीटर इसमें पानी डाला और पानी डालने के बाद आप इसको नाप रहे हैं, तो कैसे नापेंगे और किस तरह पता चलेगा कि इसका वज़न जो है, इस 1 लीटर पानी या 1 लीटर अल्कोहल का वज़न इतना है। तो 1000 जो है वो आपके स्केल पे, या जो भी डिजिटल आपकी जो है
वो रीडिंग आ जाएगी 1000 ग्राम। और इससे आपको इस वेइंग मशीन के ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि आपके जो भी लीटर ऑफ वाटर इथेनॉल या अल्कोहल का जो वज़न है वो 1000 या 789 ग्राम्स है। तो आपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जो कि वेइंग स्केल या वेइंग मशीन है। अब दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि 1 लीटर जो आपका पानी है वो 1000 ग्राम है और दूसरी तरफ आपका 1 लीटर अल्कोहल 789 ग्राम्स है। तो कौन सा भारी है? ऑब्वियसली अ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर दैन द लीटर ऑफ अल्कोहल। तो ये आपको कैसे पता चला? आपने इसके लिए तो कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करना है। तो आपने हो सकता है कि अगर आपने बीकर में ये लिया हुआ है, मिसाल के तौर पर किसी भी बॉटल में आपने ये लिया हुआ है, तो अ लीटर ऑफ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका वाटर है, अ लीटर ऑफ वाटर, और ये आपका लीटर ऑफ अल्कोहल है। 1 लीटर अल्कोहल आपने इसमें भी डाल दिया नाप के, ठीक है। अब आपने दोनों को पिक करना है, दोनों को उठा कर देखना है, हाथों का इस्तेमाल करना है। तो हाथों का इस्तेमाल मतलब आपने हैंड्स का यूज़ किया, और हैंड्स का यूज़ करने का मतलब है आपने कौन से सेंसेस का इस्तेमाल किया। तो ये है सेंस ऑफ टच। आपने किसका इस्तेमाल किया? सेंस ऑफ टच की मदद से आपको पता चला कि 1 लीटर पानी 1 लीटर अल्कोहल से भारी है। सो ये कैफियत, ये क्वालिटी आपको यहाँ पर किस चीज़ से इंडिकेट हो रही है? हैवियर, या आप लाइटर भी लिख सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं लीटर ऑफ इथेनॉल या अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल का दूसरा नाम इथेनॉल भी होता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज हियर। अ लीटर ऑफ इथेनॉल इज़ लाइटर दैन अ लीटर ऑफ वाटर, आप ये भी लिख सकते हैं। तो हैवियर एंड लाइटर, ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपके किन ऑब्जर्वेशन में शामिल होते हैं? दीज आर रिलेटेड टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। नाउ इन द एंड there were many observations collected by a scientist or naturalist of his time called Charles Darwin. चार्ल्स डार्विन भी एक साइंटिस्ट और नेचुरलिस्ट के तौर पे हमारे सामने आते हैं, और ये अपनी एक तारीख़ में, अपनी हिस्ट्री में एक बहुत बड़े नेचुरलिस्ट के नाम से मशहूर हैं। इसके अलावा इनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं जो उन्होंने इकट्ठी की, और बहुत ज़्यादा जो मशहूर इनका एक सफ़र था जो उन्होंने समंदरी सफ़र किया था ऑन अ शिप कॉल्ड HMS बीगल। ये इनका समंदरी जहाज़ था जिन पर उन्होंने अपने 5 साला 5 years यानी 5 साला सफ़र में 5 years वॉयज, यानी बाकायदा उन्होंने 5 साल उस जहाज़ पर सफ़र किया। और इस जहाज़ को मुकम्मल तौर पे ये कहा जाता है हिज़ मैजेस्टी शिप। HMS मीन हिज़ मैजेस्टी शिप। तो इस समंदरी जहाज़ पर 5 साला सफ़र के दौरान उन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठा किया, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो जमा की, और उनको बाकायदा तौर पे नोट्स की शक्ल में लिखा, और टुक नोट्स इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया। और साथ साथ यही नहीं बल्कि उन्होंने दूसरे जो नेचुरलिस्ट थे, अपने जैसे जो दूसरे नेचुरलिस्ट थे, उनके काम को भी पढ़ा। रीड द वर्क ऑफ अदर नेचुरलिस्ट, दूसरे नेचुरलिस्ट के जो उनकी डिस्कवरीज़ थी, जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, उनको पढ़ा। और पढ़ने के बाद जो उनका फ़ाइनल एक पर्पस था, जो उनका मकसद था, वो उन्होंने हासिल किया with the formation of, or with the discovery of, I must say, that is called the theory of evolution। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की, जिसे कह सकते हैं कि बेहतरीन थियोरी जो है वो पेश की, जो आज भी हमारी बुक्स में, हमारी जो साइंस की बुक्स हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस की बुक्स हैं, उनमें इन थियोरी का बहुत ज़्यादा जो है वो अमल दखल है। हम उनको पढ़ते हैं और चार्ल्स डार्विन की इस कॉन्ट्रीब्यूशन को हमेशा याद रखते हैं। सो व्हाट इज़ दिस थियोरी अबाउट? थियोरी ऑफ एवोल्यूशन मतलब इर्तकाई नज़रिया, जिसे आप कह सकते हैं इर्तकाई नज़रिया। क्या है ये इर्तकाई नज़रिया? यानी एक ऐसा कॉन्सेप्ट उन्होंने पेश किया जिसके मुताबिक आज का मौजूदा लिविंग ऑर्गेनिज़म अपने जो प्रीवियस जो इसका एक ओरिजिन है उसके लिहाज से बहुत मुख्तलिफ है।
यानी उनका ख़्याल ये था कि एवोल्यूशन क्या है, और एवोल्यूशन का मतलब उन्होंने ओरिजिन से लिया, और ओरिजिन का मतलब होता है आगाज़, स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट अपना देखें तो हमारा आज से पहले अगर हम अपनी एक तारीख़ अपने फोर फादर्स की तरफ मूव करें तो हम जो है, हमारा जो एवोल्यूशन है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होता है। और हमारे लिहाज से जो हमारा इर्तिकाई नज़रिया है ये है कि हम सब इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। और इसी थ्योरी को बेस करते हुए कुछ और भी साइंटिस्ट थे और नेचुरलिस्ट थे जिन्होंने अपनी थ्योरीज़ पेश की, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस, जो मकबूलियत हासिल हुई वो चार्ल्स डार्विन की इस थ्योरी को हासिल हुई, जिसको थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का नाम दिया गया। यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का मतलब इर्तिकाई, और इर्तिकाई का मतलब होता है शुरू होना या शुरुआत, जहाँ से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म की शुरुआत हुई। और हमारी शुरुआत कहाँ से हुई? हमारी शुरुआत हुई है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। So this is the end of today's lesson. I hope you have understood it very clearly. Thank you so much. Allah Hafiz.